السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نہ ہی افغان طالبان کا ترجمان ہے اور نہ افغانستان میں ان کی کارروائیوں کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد میں افغان صحافیوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب بعض افغان رہنماؤں کے حال ہی میں سامنے آنے والے بیانات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا گیا تھا کہ اسلام آباد کابل میں اپنی حامی حکومت دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن وزیراعظم نے افغان صحافیوں کو واضح کیا کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے بقول ہم صرف افغانستان میں امن چاہتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان دونوں کے یکساں مفاد میں ہے، اور پاکستان کابل میں اس حکومت کی حمایت کرے گا جس کو افغان عوام منتخب کریں گے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں گزشتہ ایک ماہ سے بجلی اور شام 6 بجے سے صبح 4 بجے تک موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں طالب علموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امن و امان کی ناقص صورتحال کی وجہ سے تاجر برادری شام سے پہلے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو مستقبل میں شہریوں کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے صدارتی محل میں نیشنل فلیگ ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طالبان سے کہا ہے کہ اگر آپ طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی طاقت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ جمعرات کے روز اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لوگ افغانستان میں خونریزی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے جنگ جاری رکھی تو افغان نیشنل فورسز جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے چین کی جانب سے طالبان سے اس مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیں۔ ایک بیان میں افغان وزارت خارجہ نے کہا کہ چین کے سرکاری عہدیداروں نے طالبان وفد کے ساتھ میٹنگ میں کہا ہے کہ وہ ایسٹ ترکستان موومنٹ یا ETIM اور دوسرے تمام دہشت گرد گروپوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں۔ افغان حکومت چینی حکومت کے اس موقف کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ چینی عہدیداروں نے دورے پر آئے ہوئے طالبان کے وفد کو بتایا ہے کہ باغی گروپ کو افغانستان میں جنگ ختم کرنے اور ملک کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی تعمیر نو کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے قائم سرکاری ادارے سیگار کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے اگست میں امریکی فوج کا انخلا مکمل ہونے کے بعد کابل حکومت کو اپنی بقا کی جنگ کا سامنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ طالبان اسے زیر کر لیں۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل جان ساپکو کی تیار کردہ بدھ کو سامنے آنے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر رجحانات افغان حکومت کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ اگر کابل حکومت نے ان کے تدارک کے لیے اقدامات نہ کیے تو اس کے قیام کو خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز نے کچھ اضلاع پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور افغانستان کی حکومت اب بھی تمام 34 صوبوں کے صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول رکھتی ہے۔ سیگار کی رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ طالبان نے ایسے کوئی بھی امکانات پیش نہیں کیے ہیں جس پر یقین کیا جا سکے کہ وہ اپنی کارروائیوں کی شدت میں کمی لائیں گے۔ سیگار کی رپورٹ پر طالبان کا کوئی رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس ابھی سے ہی امریکہ میں آئندہ برس ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے، لہذا ماسکو کی یہ اقدامات ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو ورجینیا میں آفس آف دی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹرز میں انٹیلیجنس افسران اور اہلکاروں سے خطاب کے دوران کیا۔ وائس آف امریکہ کے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے مطابق
इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जानिब से बाइडन को दी गई ब्रीफिंग का हवाला देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि रूस ने सन 2022 के इंतखाबात से मुताल्लिक अभी से ही गलत मालूमात फैलाना शुरू कर दी हैं। सदर बाइडन ने जोर दिया कि इंटेलिजेंस इदारों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी सियासी जमात कांग्रेस या व्हाइट हाउस के अंदर इख्तिदार में है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस के लोग मुकम्मल तौर पर आज़ादाना अंदाज में किसी सियासी असर के बगैर काम करें। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका और रूस के सीनियर ओहदेदारों ने बुध के रोज़ दुनिया की दो सबसे बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान तनाव कम करने के लिए बातचीत दोबारा शुरू की है और इस गैर रस्मी मुशावरत के बाद इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि सितंबर में बातचीत के लिए दोबारा इजलास किया जाए। अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन और रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रयाबकॉफ ने जेनीवा में अमरीकी सिफारती मिशन में इस बातचीत के दौरान अपने अपने मुल्क के वफ़द की क़यादत की। खबरसां एजेंसी तास ने रयाबकॉफ के हवाले से बताया है कि वो सलाह मशवरे से मुतमईन हैं और ये कि अमरीका ने तामीरी मुज़ाकरात पर फौरी रजामंदी जाहिर की है। एक साल में हथियारों पर कंट्रोल समेत मुतादिद उमूर पर दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात के दौरान स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ये पहली बातचीत थी। यमन में तकरीबन 21 मिलियन अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। यमन की कुल आबादी 29 मिलियन से कुछ ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा यमन को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान समझती है और उसके मुताबिक 16.2 मिलियन अफराद खुराक की इंतहाई कमी और शदीद भूख से दो चार हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदाजे के मुताबिक यमन में 50 लाख से ज़्यादा अफराद कहत के दहाने पर हैं। WFP हर माह तकरीबन 13 मिलियन अफराद को हंगामी बुनियादों पर खुराक की मदद फराहम करता है। WFP को इस साल इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम चलाने के लिए $1.9 बिलियन की ज़रूरत है, जो अभी भी $900 मिलियन कम है, और प्रोग्राम की तरफ से आलमी बिरादरी से अपील की जा रही है कि इस कमी को पूरा किया जाए। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में आम तौर पर शफाफियत और मौसर पॉलिसियों और कवानीन का फुख्तान है। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मार्केट पर मबनी मुकाबले को यकीनी बनाने का एक मैंडेट है, लेकिन पाकिस्तान में खेल के कवायद मुबहम और गैर वाज़ेह हैं। बाज़ औक़ात घरेलू कारोबार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन कवायद का इतलाक़ होता है। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी तनक़ीद का निशाना बनाया है और कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज अदालती निज़ाम पर ख़ासा असर और रसूख रखती है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीकी महकमा खारजा की इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि मुल्क में अदलिया मुकम्मल आज़ाद और शफ़ाफ है, फ़ैसले बर वक्त किए जाते हैं और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की अहलियत और काबिलियत काबिल भरोसा है। बाज़ वकला ने इस रिपोर्ट को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत, जबकि बाज़ ने इसे हकीकत पर मबनी करार दिया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के बकरान डिवीज़न में कोरोना की चौथी लहर के बाइस अब तक कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से शहरी इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सियाहत ने ईद उल अज़हा के मौके पर 5 मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर होने वाली सियाहती सरगर्मियों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 4 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 66.5 अरब रुपए का कारोबार हुआ है, जिससे मकामी तौर पर इस शोबे से मुंसलिक लोगों को 27 अरब रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा सयाह स्वात और गलियात गए थे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी गुज़श्ता 5 दिनों से दारुल हुकूमत दिल्ली में हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं से मुलाकात कर रही हैं। वो सन 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ का एक मुश्तरका उम्मीदवार उतारा जाए। अपोजिशन इत्तेहाद के सिलसिले में इन मुलाकातों को काफ़ी अहम समझा जा रहा है।
जनूबी बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंपों में कई दिनों की बारिशों ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में पनाहगज़ीनों के रहने की जगह बर्बाद हो गई है और हज़ारों लोग अपने रिश्तेदारों या इज्तिमाई पनाहगाहों में सर छुपाने पर मजबूर हो गए हैं। पनाहगज़ीनों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने बताया है कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर कॉक्सिस बाजार के उन कैंपों में जहां 8 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या पनाह लिए हुए हैं, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि कोविड-19 की वबा की वजह से सूरत हाल और भी अबतर हो रही है। पाकिस्तान में कोरोना वबा के निगरां इदारे NCOC के सरबराह सद उमर ने मुल्क में वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए 31 अगस्त की डेड लाइन का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रियो कोमो ने बुध के रोज कहा है कि सारे रियासती मुलाजमीन के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन लाजमी है और बाकायदगी के साथ उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा और सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान उस पर अमल होगा। सदर जो बाइडन से भी तवक्को है कि इस हफ्ते के आखिर में वो वफाकी मुलाजमीन के लिए भी इसी तरह के कवायद का ऐलान करेंगे। अमरीका के मुतादिद हस्पतालों और नर्सिंग होम्स ने अपने कारकुनों के लिए वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया है। तुर्की के जनूब में जंगलात में लगने वाली आग बुध के रोज तेज हवाओं से फैलकर मनावागत नामी शहर तक पहुंच गई है और मकामी मेयर और टीवी पर दिखाई जाने वाली फुटेज के मुताबिक लोग धुएं से भरी सड़कों पर अपनी कारों की तरफ भाग रहे हैं। फुटेज में दिखाया गया है कि अंतालिया से 75 किलोमीटर मशरिक में मनांगत के गिर्द जंगल से स्याह धुआं उठ रहा था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।